Hi friends, in this session we start with chapter number 6 and exercise कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कुछ सॉल्व एग्जांपल डिस्कस किए थे। इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 7 डिस्कशन करते हैं। स्टेटमेंट क्या है अच्छे से पढ़िए। इन अ प्रोसेस 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work done by the system. Most important underline कर लीजिएगा ये वर्ड, work done by the system। आप सभी को मैंने बताया था work done on a system, work done by the system। साइन में याद रखिएगा क्या चेंज आएगा। What is the change in internal energy for this process? वैसे तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम की वजह से ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। सो Q प्लस 701 जूल, W इज इक्वल टू माइनस 394 जूल, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड डेल्टा U इज क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ TD। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q is 701 plus W is equal to minus 394। यहाँ पे माइनस साइन क्यों आई? जस्ट बिकॉज वर्क डन बाय द सिस्टम, that's why W is equal to minus, so that's why delta U is equal to 307 joule। Many time this question ask in MCQ examination also। 4 ऑप्शन दिए होंगे और वर्क डन बाय द सिस्टम की जगह पे अगर आपने माइनस की जगह पे प्लस ले लिया तो आप लिखोगे 701 प्लस 395। सो प्लस 394 करोगे तो 1000 प्लस आंसर चला जाएगा एंड दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सो याद रखिएगा वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए वर्क माइनस 394 करना है। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस 8th न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट विद 8th, important for a school examination concern। The reaction of cyanamide, that is NH2CN, with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change for this reaction at 298 Kelvin. NH2CN plus 3/2O2 gives N2 plus CO2 plus H2O। फाइन। सो इक्वेशंस दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। NH2CN is in solid, O3/2O2 is in gas, N2 in gas, CO2 in gas। Why? Just because यहाँ पे डेल्टा Ng फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा Ng के लिए NP माइनस NR, NP माइनस NR किसके लिए होगा? ओनली एंड ओनली गैसियस स्पीशीज के लिए। वंस अगेन गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, देन वी स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 8। So according to this equation, NH2CN plus 3/2O2 gives N2 plus CO2 plus H2O। So delta Ng, NP minus NR, NP का मतलब number of moles of product is in gaseous form, minus NR means number of moles of reactant is in gaseous form। So 2 minus 3/2, 2 कहाँ से आया? तो that is N2 and CO2 का coefficient 1 plus 1 2, and this is in gaseous form, so that is 3/2 is equal to plus half। Now our standard formula, delta H is equal to delta U plus delta NGRT। So delta U is equal to minus 742.7 plus half of 8.314 into 10 to the power minus 3 into 298। multiply कीजिए, summation कीजिए, you get your answer minus 741.5 किलोजूल पर मोल। बहुत इजी है बट इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आफ्टर न्यूमेरिकल नंबर 8 लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 9। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। गिवन मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का 60 ग्राम, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। तो 60 डिवाइड बाय 27 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। From 35 degree Celsius to 55 degree Celsius। So change in temperature 55 minus 35, 20 degree। Molar heat capacity of aluminium is 24
जूल पर मोल पर केल्विन. Once again, given data extract कीजिए. Given mass of aluminium is given 60, molar mass of aluminium is 27, change in temperature 35 to 55 and blah blah blah. So given data extract कर लीजिए. We'll start the numerical. Numerical number 9, very simple, very easy, very short also. Q is equal to N into C into delta T. N 60 divided by 27, C 24 and delta T 328 minus 308. So simplify कीजिएगा, multiplication कीजिए. What you get? You get 1066.7 joule. That is 1.07 kilojoule. Very simple, very easy numerical. Next, numerical number 11, enthalpy of combustion of carbon to carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule per mole. Calculate the heat releases upon the formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and dioxygen. तो सबसे पहले CO2 कैसे बनता है दोस्तों? C plus O2 gives CO2. Now 1 mole कार्बन डाइऑक्साइड जब भी हम कंबस्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब व्हेन वी बर्न 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज, तो 35.2 पे कितना? सिंपल यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू गेट योर आंसर. So C plus O2 gives CO2. Delta H is equal to minus 393.5 kilojoule per mole. Now 1 mole of carbon dioxide is nothing but 44 gram. So if we have a 44 gram carbon dioxide minus 393.5 kilojoule mole energy release, so 35.2 gram gives how much? Cross multiplication, this into this divided by this. Simplify कीजिए, you get your answer minus 314.8 kilojoule. Very easy, very simple numerical. Numerical number 11. And exercise numerical number 12, important for your school examination concern. Enthalpies of formation of CO, CO2, N2O, N2O4R. चारों की एंथैल्पी दी हुई है, that is minus 110, minus 393, 81 and 9.7 kilojoule per mole respectively. Find out the delta H of reaction. Reaction कौन सा हो रहा है? N2O4 plus 3CO gives N2O4 plus 3CO2. अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे 3CO है तो CO की एंथैल्पी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 एंड CO2 की भी एंथैल्पी 3 है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3. लोग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो ये चीज अच्छे से याद कर लीजिएगा. सो सारी की सारी एंथैल्पी की वैल्यू लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए. विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन कंसर्न. इक्वेशन क्या है? N2O4 plus 3CO gives N2O plus 3CO2. फॉर्मूला क्या है हमारा? डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट. सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, यू गेट योर आंसर. प्रोडक्ट में क्या क्या है? प्रोडक्ट में है N2O and 3CO2. सो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ N2O प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2, ये करना मत भूलिएगा, माइनस डेल्टा H ऑफ N2O4 प्लस 3 इंटू डेल्टा H ऑफ CO. 3 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा. सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है, दैट इज 81 प्लस 3 इंटू माइनस 393 माइनस 9.7 प्लस 3 इंटू 110. सिंप्लीफाई करोगे यू गेट योर आंसर माइनस 777.7 किलो जूल पर मोल. इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन. ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस दिए होंगे जिसके अंदर ऑल द 4 वैल्यूज आर गिवन. सिंपल आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, समेशन करना है, यू गेट योर आंसर. 13 N2 plus 3 mole of H2, you get 2 mole of ammonia. Delta H of reaction is minus 92.4 kilojoule per mole. What is the standard enthalpy formation of ammonia gas? Very easy and fall to numerical.
अब सिंपल यहाँ पे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे सिंपल पूछा है 1 मोल के लिए, तो -92.4 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, यू गेट योर आंसर. सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन N2 + 3H2 यू गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया. हमें 1 मोल चाहिए इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया. हाफ ऑफ N2 + 3/2H2 गिव्स अमोनिया. सो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग -92.4 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, योर आंसर इज -46.2 किलो जूल पर मोल. वेरी इजी, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. नाउ नेक्स्ट इज 14 and 15. Most important numerical. Out of these two, one definitely gonna ask in your school examination. 14 and 15 दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. Calculate the standard enthalpy of formation of methanol, that is CH3OH, from following data. डेटा में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट, मिथेनॉल + 3O2 gives CO2 + 2H2O. डेल्टा H ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है. अब ये CO2 and H2O कैसे बनता है वो सिंपल बताया. C + O2 gives CO2, मीन्स ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखाई हुई है. C + O2 gives CO2, इसके लिए है एंथैल्पी. NH2O कैसे बनता है? तो H2 बनता है H2 + ½ O2, यू गेट H2O. सो यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा H ऑफ मिथेनॉल, वो आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल नंबर 14. Let's start with the numerical number 14. CH3OH + 3/2O2 gives CO2 + 2H2O. Delta H of reaction is -726 kilojoule per mole. C + O2 gives CO2. You get delta H of C is equal to -393 kilojoule per mole. H2 + ½ O2 gives H2O. Delta H of formation is -286 kilojoule per mole. What is our aim? हमें बनाना क्या है? मिथेनॉल. तो मिथेनॉल बनेगा कैसे? C + 2H2 + ½ O2 gives मिथेनॉल. तो हमारे पास C रेडी है. नेक्स्ट 2H2 मीन्स दिस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2H2 बन जाएगा, और ये मिथेनॉल को सामने ले लीजिए. सो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन भी रेडी है. सो इसी के हिसाब से डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन हम बना सकते हैं. सो व्हाट इज आवर की कंसर्न? वी हैव टू प्रिपेयर मिथेनॉल. तो कैसे बनेगा? इक्वेशन नंबर 2 + 2 into equation number 3 minus equation number 1. So delta H is equal to -393 + 2 into -286 minus of -726. Summation of all the enthalpies हमें मिलेगा -239 kilojoule per mole. So this is all about your delta H of methanol. Last numerical number 15. Calculate the enthalpy change for a process. CCl4 gives C + 4Cl. बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ. CCl4 को आपको तोड़ना है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट इज CCl4 के 4 बॉन्ड तोड़ने हैं C + 4Cl. कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4. अब कुछ गिवन डेटा दिए हुए देखिए. डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स CCl4 जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट्स अ वेपोराइजेशन एंथैल्पी. डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी CCl4 दिया हुआ है. कार्बन की एटमाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है, एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cl2 भी दिया हुआ है. सो दिस आर द 4 वैल्यूज दैट गिवन, और अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CCl4, दैट इज CCl4 gives C + 4Cl. गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए. न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सारे के सारी एंथैल्पीज आप लिख लीजिए. सबसे पहले इक्वेशन क्या है? CCl4 gives C + 4Cl. फर्स्ट एंथैल्पी दी हुई डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन दिस, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 इज दिस, डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन इज दिस, एंड Cl2 इज दिस. ये सिंपल गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है. नाउ लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन. इक्वेशन कौन कौन से फॉर्म हो गए यहाँ पे? तो सबसे पहला इक्वेशन CCl4 liquid is converted into CCl4 gas, that is enthalpy of vaporization. So delta H is equal to 30.5 kilojoule per mole.
सेकेंड डेल्टा एच फॉर्मेशन, जो हमें बनाना है फॉर्मेशन, क्या बनाना है, CCl4. सो C प्लस 2Cl2 गिव CCl4 और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है हमें -135.5 किलो जूल पर मोल. नाउ थर्ड, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. जनरली कार्बन कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म, उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैस में. सो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू 715.0 किलो जूल पर मोल. Cl2 इज अ डायटोमिक स्पीशीज, इसमें से मोनोएटमिक स्पीशीज करना है, तो Cl2 2 into Cl, that is delta H of 242 किलो जूल पर मोल. What is our aim? एम क्या है सर, CCl4 है, उसको तोड़ के C plus 4Cl बनाना है. तो ये कैसे अचीव हो पाएगा, तो ये अचीव होगा इक्वेशन नंबर 3 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 से. सर कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला. तो सबसे पहले देखिए C प्लस 4Cl बनाना है कि नहीं. तो सबसे पहले C कहाँ पे है, तो इक्वेशन नंबर 3 पे है C, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3. प्लस मुझे क्या चाहिए, 4Cl. तो इक्वेशन नंबर 4 के एंड में मुझे 2Cl मिल रहा है, तो ऐसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ पे 4Cl मिलेंगे. तो देखिए 2 इंटू इक्वेशन नंबर 4, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4Cl के लिए 2 इंटू इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. सिंप्लीफाई करो, सारी की सारी वैल्यूज डेल्टा एच की दी हुई है. पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. इक्वेशन में से एक एक वैल्यू खींच के रखिए. 715 2 इंटू 2 to 4 माइनस 30.5 माइनस ऑफ माइनस 135.5. सभी का सिंप्लीफिकेशन करोगे, यू गेट योर आंसर. डेल्टा एच इज इक्वल टू 1304 किलो जूल पर मोल. ये तो टोटल एंथैल्पी हुई, हमें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर मोल ढूंढना है. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी CCl इज 1304 डिवाइड बाय 4, दैट इज 326 किलो जूल पर मोल. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. लोग यहीं पे आंसर लाके छोड़ देते हैं, बट हमें सिंगल CCl बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ढूंढनी है. सो डिवाइडेड बाय 4 करना मत भूलिएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. इस सेशन के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल चेक किए. नेक्स्ट सेशन में कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 6 प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.